امریکی افواج کی جانب سے رات گئی ایران کے مختلف علاقات میں فضائی حملے صوبہ ہرمزگان، قشم جزیرہ، سیرک، جاسک، بندر عباس اور سیرک میں ایرانی ریڈار سسٹم اور فضائی دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے۔ کارروائیاں بلا جواز ایرانی جارحیت کے جواب میں متناسب رد عمل قرار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف فضائی کارروائیاں مکمل کرنے کا اعلان۔ امریکی فضائی حملوں میں قشم جزیرہ، سیرک، جاسک، کوہ مبارک کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے باعث تہران، میناب یا بندر عباس میں کسی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں۔ سیرک میں پانی کے 2 ذخائر کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ سیرک میں ایک مواصلاتی ٹاور کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران میں امریکی حملے کے بعد صورتحال پرسکون قرار دے دی۔ کارروائیاں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا رد عمل ہیں۔ جواب بہت سخت اور بہت طاقتور ہونا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ABC نیوز سے گفتگو واضح کر دیا کہ وہ ہمیشہ مضبوط انداز میں جواب دینے پر یقین رکھتے ہیں اور باور کرایا کہ امریکہ کے پاس ایک معاہدہ تھا جو بہت اچھا تھا، وہ یقیناً اب بھی موجود ہے۔ ٹرمپ کا ایران کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار۔ تعمیر نو کے بدلے ایرانی تیل کا آدھا حصہ مانگ لیا اور کہا کہ ایران کو پولر پاور پلانٹ سمیت ہر چیز دوبارہ بنانا ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی تردید کری۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ کشیدہ ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر ارادی حادثات کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ایران کا امریکی ڈرون MQ-9 تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی جاسوس ڈرون کو صوبہ بوشہر میں مارا گیا۔ ڈرون شمالی خلیج فارس کی فضا میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد قطر، کویت، بحرین اور امارات نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا۔ پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی گئیں۔ بحرین میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں کو پرسکون رہنے اور قریبی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ طاقتور ایرانی افواج کسی بھی حملے یا خطرے کے جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی جارحیت پر جواب۔ واضح کیا کہ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو خطے سے نکل جائیں۔ خلیج فارس کی تاریخ میں بیرونی مداخلت کا بھیانک انجام ہے۔ امریکی اسپیکر نے ایران کے خلاف کارروائی کو متناسب اور محدود قرار دے دیا۔ مائک جانسن نے صدر ٹرمپ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے بعد کہا کہ امریکی افواج نے دفاعی حملوں میں ایرانی ریڈار، میزائلز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ٹارگٹ کیا۔ Well, they've already hit several targets on Kemch Island and Sirik naval base. Look, this is a lie. What the United States is doing, it's a pretext. اپاچی ہیلی کاپٹر کو ایرانی حملے میں گرائے جانے کا واشنگٹن کا بیانیہ سراسر جھوٹ ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق انٹیلیجنس تجزیہ کار لیری جانسن کا دعویٰ۔ واضح کر دیا کہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کو ایران پر مزید فوجی حملوں کے لیے بہانہ استعمال کیا گیا۔ روسی میڈیا نیٹ ورک سے گفتگو میں لیری جانسن نے امریکی دعووں پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ اگر ہیلی کاپٹر کو واقعی ایرانی ڈرون یا میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا ہوتا تو دونوں امریکی پائلٹس کو زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ Close. How soon could the deal happen before the midterm elections? Oh, absolutely. No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. Are the Iranians stringing President Trump along in your view? No, I don't think so. Again, I think their system takes a long time to reach consensus. ایران سے طویل المیعاد معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ حتمی پیش رفت میں 1 ہفتے سے چند ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی NBC نیوز چینل سے گفتگو۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% اضافہ۔ برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $92 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $88 فی بیرل ہو گیا۔
हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज सुबह होगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का राबता। इसहाक डार गिलगित बल्तिस्तान में पीपी की कामयाबी पर बिलावल को मुबारकबाद पेश कर चुके हैं। दोनों रहनुमाओं का गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हुकूमत बनाने और सूबाई उमूर पर दोनों जमातों के साथ बैठने पर इत्तेफाक। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। मुकदमा महकमे दाखिला के 9 जून के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर दर्ज किया गया। आजाद कश्मीर की बदअमनी में दुश्मन एजेंसी का किरदार बेनकाब। मुजफ्फराबाद में दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के 5 मुबैना कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। खुफिया इत्तला पर चहला में सिक्योरिटी इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। डिजिटल आरात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद भी मिला। एक मुलजिम की निशानदही पर हथियारों का बड़ा जखीरा तहवील में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे भी मिले। मैं अवामी एक्शन कमेटी नाल आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं और आइंदा भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं एक शरीफ पाकिस्तानी शहरी हाँ, ना मैं कोई आर्मी के खिलाफ हाँ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जो हालिया रावलाकोट में हम सुन रहे हैं जो कत्ल गारत है होली खेली जा रही है, उसको देखते हुए हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले दिन से उसका न सिर्फ हिस्सा रहे बल्कि एक बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुनान एहसान शबीर और सैयद फैसल गिलानी का तंजीम से ला ताल्लुकी का ऐलान। दोनों माजी में कमेटी के सरगर्म कारकुनान रहे। हालिया हालात और पुरतशद्दुद गर्मियों को देखते हुए तंजीम से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। दोनों अफराद की जानिब से पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मसम्मत। सोमालिया में अगवा जहाज पर सवार पाकिस्तानियों की रिहाई की काविशें तेज। वजीर खारजा इसहाक डार का सोमाली हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों की महफूज वापसी की अहमियत पर जोर। मामले को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए। सोमालिया के वजीर खारजा ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खैल में ख्वारिज से मुकाबले में 6 FC एहलकार शहीद। शहदा की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। दहशतगर्दों की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बातचीत की और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज के 14 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में देसी साख्ता बम तबाह। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। कराची और लाहौर गैरिजन में पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज में बावकार तकरीबात का इनेकाद। शहदा की कुर्बानी और गाजियों की खदमात को खराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन और गाजियों को फौजी एजाजात से नवाजा गया। कराची की तकरीब में कोर कमांडर, लाहौर की तकरीब में GOC लाहौर गैरिजन मेहमान खुसूसी थे। तकरीबन अभी तक 24 हल्के हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। अब इनमें से कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरखास्तें आई थी।
गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 5 हलकों पर री पोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 हलकों में री पोलिंग DROs ने तजवीज़ दी थी। राजा शहबाज का पुरअमन इंतखाबात पर आवाम से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। 19 जून तक कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत 13 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जंगलात के 750 एकड़ जमीन पर कब्जे करके निजी हाउसिंग सोसाइटी कायम करने का इल्जाम। रेफरेंस में नामजद बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज और उनके बेटे अली अहमद रियाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके। मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार किया। पंजाब हुकूमत का मदारिस की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार में नरमी बरतने का फैसला। वज़ीर तालीम ने रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ बिल सूबाई असेंबली में पेश कर दिया। कोयटा की वहदत कॉलोनी वाक़े पर मुकदमे में नामजद सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और ड्राइवर मसूद अहमद मुअत्तल। फायरिंग से कत्ल 4 बच्चों और उनकी वालिदा की नमाज जनाजा अदा। सरकारी मुलाजिम ने अहलिया और 4 कम उम्र बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। अनमोल और पिंकी से 1240 ग्राम कोकेन बरामद की गई। कराची और लाहौर में मुल्जिमा के खिलाफ मजमूई तौर पर 28 मुकदमात का इंदराज। मोबाइल से 868 फोन नंबर्स का रिकॉर्ड मिला। सिंध पुलिस ने रिपोर्ट कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी। कराची के इलाके रंगी टाउन में मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। दुल्हे के घर से हाथ पांव बंधी लाश मिली। पुलिस ने शक की बुनियाद पर दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमती कर्जों का नया रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत के कर्जे बढ़कर रिकॉर्ड 81,930 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गए। एक साल में कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाक़ाजात में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश रहेगा। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में पारा 48 और तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की लहर 12 जून तक जारी रहेगी। शिमाली आयरलैंड के दारुल-हुकूमत बेलफास्ट में एक सूडानी की जानिब से चाकू के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां और अमलाक जला दी। पुलिस की जानिब से सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है। ईरानी वर्ल्ड कप स्क्वाड लॉस एंजल्स में मैच से एक रोज कबल 15 जून को अमरीका पहुंचेगा। खिलाड़ियों को टिकट्स मिल गईं। मैनेजमेंट के 14 अरकान को अमरीकी वीजा नहीं मिल सका। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन वॉरिंगटन ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात की। वॉरिंगटन ने पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर से मुस्तकबिल के इवेंट्स के हवाले से बातचीत की और इस मौके पर अरशद नदीम ने बेन को जैवलिन थ्रोअर करने की तरबियत दी।